Assalamu alaikum guys. My name is Almas Mustafa. I am going to teach you biology. So we start chapter number 10, gaseous exchange. Gaseous exchange, first of all you have an idea about meaning of gaseous exchange. Basically gaseous mean gases. Gases may be oxygen, maybe carbon dioxide. Exchange meaning interchange. Mean interchange, one intake and the other outtake. So we are going to discuss gaseous exchange. First of all, you have an idea about these terms. Why we do gaseous exchange? Why plants do gaseous exchange? First of all, you have idea about the terms breathing. Breathing basically जो बताने का यहाँ पर्पस है ब्रीदिंग और रेस्पायरेशन. बच्चे अक्सर इन दोनों टर्म्स को कंफ्यूज कर जाते हैं. ब्रीदिंग मीनिंग इनटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड आउटटेक ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. दिस इज बेसिकली अ फिजिकल फिनोमेना. Physically meaning we inhale oxygen and exhale carbon dioxide. Next we have an idea about respiration. What is respiration? Basically respiration is breakdown of CH bond. Why we break CH bond? From where we get CH bond? Basically when we eat food, our food mostly contains glucose and we use glucose for energy creating, meaning to produce energy. CH bond, how we break CH bond? Basically CH bond is breakdown by oxygen or maybe not by oxygen. CH bond, what is the purpose of CH bond breakdown? Basically CH bond की breakdown का purpose ये है कि जब हम इन bond की breakdown करेंगे तो यहाँ से energy release होगी और वो जो energy है उसको हम utilize करते हैं ATP की formation में. What is ATP? Basically ATP abbreviated as adenosine triphosphate. This is that nucleotide which we use to perform our activities like running, jumping, moving, etc. Next we are going to discuss aerobic respiration. Aero basically means air. Air contains oxygen. Many other gases, but our concern with oxygen. Aerobic respiration basically that respiration meaning that breakdown of CH bond in which we utilize oxygen. बेसिकली ऑक्सीजन को हम यहाँ इसलिए यूटिलाइज करते हैं क्योंकि जो ऑक्सीजन है वो ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के लिए यूज होता है. What how you can understand oxidation or reduction reaction? Basically aerobic meaning aero meaning air. Obviously air contains gases but our concern is with oxygen. Basically we use oxygen in respiration or in the breakdown of CH bond. ये जो बेसिकली ऑक्सीजन होता है हमारे पास ये यूटिलाइज हो जाता है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन में. अब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन में कैसे यूटिलाइज होता है कि फॉर एग्जांपल ये देख लेंगे हमारे पास है ग्लूकोज के साथ हमने ऐड किया ऑक्सीजन को एंड दिस इज ब्रेकडाउन meaning glucose is breakdown into carbon dioxide and water. Carbon dioxide plus water and release energy. These both are basically waste product, our concern with energy. So you can see here oxygen use in oxidation and reduction, meaning carbon dioxide oxidation एंड H2O रिडक्शन. बेसिकली यहाँ ये जो है इक्वेशन है बैलेंस नहीं की हुई, जस्ट हमारा कंसर्न था देखना
कि किस तरह इन दोनों की ब्रेकडाउन होती है और किस तरह एनर्जी रिलीज होती है। अब ये जो एनर्जी यहाँ से रिलीज हुई है, इस एनर्जी को हम लोग अपनी एटीपी की फॉर्मेशन में यूटिलाइज कर लेंगे। देन एटीपी को हम लोग अपने लिए यूटिलाइज कर सकते हैं, अपनी एक्टिविटीज के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट टर्म हमारे पास आ जाती है सेल्यूलर रेस्पायरेशन। व्हाट इज मीनिंग बाय सेल्यूलर रेस्पायरेशन? बेसिकली सेल्यूलर मीनिंग सेल्स। बेसिकली जो रेस्पायरेशन है हमारे पास ऐसा नहीं होता कि हमारे पास कोई प्रॉपर ऑर्गन है जिसमें एक ही दफ़ा रेस्पायरेशन कंडक्ट हो जाती है, बल्कि हमारा जो हर सेल है वो रेस्पायरेशन को परफॉर्म करता है। जैसे कि हमारा जो ब्लड है वो हमारे हर बॉडी के सेल तक ऑक्सीजन को प्रोवाइड करेगा। फूड तो हमारे पास ऑब्वियसली होगी, हम लोग डाइजेशन के प्रोसेस से हमारे पास ग्लूकोज भी मूव कर जाएगा सेल्स के अंदर। देन वी यूज दिस ऑक्सीजन एंड परफॉर्म द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज बाय ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन एंड टू मेड एनर्जी। दिस एनर्जी देन वी यूटिलाइज फॉर आवर एक्टिविटीज। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो है हमारे पास गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट्स। First of all we discuss in plants, then we discuss animals. You have an idea about how plants do gaseous exchange. जिस तरह हमारे पास एक प्रॉपर स्ट्रक्चर है ना गैसियस एक्सचेंज के लिए, प्लांट्स के पास ऐसे कोई प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं होता, बल्कि जो प्लांट्स के हर सेल अपना अपना गैसियस एक्सचेंज खुद परफॉर्म करवा रहे होते हैं। ईच सेल परफॉर्म गैसियस एक्सचेंज। Now we discuss one by one how plant parts utilize or use gaseous exchange function. First of all we consider or we discuss young stem and leaves. How young stem and leaves perform gaseous exchange. Young stem and leaves. बेसिकली यंग स्टेम मीनिंग वो स्टेम जो अभी मतलब कि न्यू है, पुरानी ज़्यादा नहीं हुई हुई। तो ये जो गैसीय, अगर हम यंग स्टेम और लीव्स की बात करते हैं कि गैसीय जो हमारे पास स्टेम है या फिर लीव्स हैं, ये किस तरह से गैसियस एक्सचेंज को परफॉर्म करेंगे। सबसे पहले तो हम लोगों को जो है लीव के स्ट्रक्चर का पता होना चाहिए। अगर हम एक लीव के स्ट्रक्चर को अंडर माइक्रोस्कोप ऑब्जर्व करते हैं तो हम लोग देख सकते हैं कि ये मैंने थोड़ा सा पार्ट लिया लीव का, उसके स्ट्रक्चर को माइक्रोस्कोपिकली हम लोग देख रहे हैं। सबसे पहले जो लेयर होगी लीव के ऊपर वो आ जाती है हमारे पास क्यूटिकल, जिसको हम नाम देते हैं क्यूटिकल का। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगी अंडर द क्यूटिकल इज द अपर एपिडर्मस एंड देन मेसोफिल सेल्स आर प्रेजेंट एंड एट द लास्ट लोअर एपिडर्मस इज प्रेजेंट। लोअर एपिडर्मस इज प्रेजेंट। आप लोगों ने पत्ते को देखा होगा, ऊपर भी उसका एपिडर्मस है, नीचे भी उसका एपिडर्मस है। जो सेंटर में सेल्स हैं वो ये लेयर्स मौजूद होती हैं हमारे पास। अब अगर हम लीव्स की तरफ देखें कि लीव्स और जो स्टेम है हमारे पास वो किस तरह से परफॉर्म कर रही हैं इसको, तो इनके अंदर हमारे पास गार्ड सेल्स, ये हमारे पास गार्ड सेल्स हैं, गार्ड सेल्स मौजूद होते हैं और इसके सेंटर में करके यहाँ पे जो पोर मौजूद होगा उसको हम कहते हैं स्टोमेटा। सिंगली स्टोमा या फिर ज़्यादा एक नहीं होता, बहुत ज़्यादा होते हैं, इसको हम स्टोमेटा कंसीडर कर लेते हैं। तो बेसिकली ये जो स्टोमेटा है ये हेल्प कर रहा होता है लीव की भी और यंग स्टेम्स की भी कि वो जो है अपना प्रोसेस गैसियस एक्सचेंज का परफॉर्म कर सकें। तो यहाँ हमारे पास कौन परफॉर्म करवाता है? स्टोमेटा। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास, अब अगर हम लीव्स की बात कर रहे हैं तो हमें लीव का पता होना चाहिए। जो लीव है उसको दो सिचुएशंस को फेस करना पड़ता है। वो कौन सी दो सिचुएशंस हैं? लीव सिचुएशंस। नंबर 1 आ जाता है हमारे पास कि वो सिचुएशन जो उसको डे टाइम में परफॉर्म करनी पड़ेगी या फेस करनी पड़ेगी। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है नाइट टाइम
जैसा कि हम लोगों को पता है कि जो पौधे हैं या प्लांट्स हैं हमारे पास, वो फोटोसिंथेसिस का मैकेनिज्म परफॉर्म कर रहे होते हैं, अपनी फूड को खुद प्रिपेयर करते हैं। मीन कि वो ऑटोट्रॉफ्स हैं, हमारी तरह हेट्रोट्रॉफ्स नहीं हैं। अब डे टाइम हम लोगों को ये पता है कि बेसिकली जो फोटोसिंथेसिस है वो इन सनलाइट परफॉर्म होती है। तो डे टाइम की अगर हम बात करें तो यहाँ प्लांट के अंदर दो मैकेनिज्म चल रहे हैं। ऑब्वियसली वो खुराक तो खुद तैयार कर रहा है, लेकिन उसे भी तो एनर्जी की ज़रूरत है, उसने भी एनर्जी गेन करनी है, वो तो खुद अपनी फूड प्रिपेयर करके एनर्जी को गेन करेगा। ये हमारे पास परफॉर्म करवाता है फोटोसिंथेसिस। बेसिकली जो हमारे पास फोटोसिंथेसिस है, फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस है जिसके अंदर ग्लूकोज की फॉर्मेशन होगी, ग्लूकोज की फॉर्मेशन होगी। अभी जब ये ग्लूकोज की फॉर्मेशन होती है तो इसके साथ एक रॉ मटेरियल रिलीज होता है जो कि हमारे पास ऑक्सीजन है, जो कि हमारे पास ऑक्सीजन होता है। अब ये क्या करते हैं, पौधे ऑक्सीजन को रिलीज करेंगे और अब ये जो ऑक्सीजन है इनकी, ये यूटिलाइज हो जाती है रेस्पायरेशन के अंदर। अब ये रेस्पायरेशन के अंदर यूटिलाइज हो जाएगी। बेसिकली रेस्पायरेशन का हमने पढ़ा था कि ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होगी और एनर्जी रिलीज होगी। तो हम लोगों ने पीछे भी देखा है कि इसके अंदर जो हमारे पास है वेस्ट प्रोडक्ट वो रिलीज होती है कार्बन डाइऑक्साइड। मीनिंग इसका जो रॉ मटेरियल है, इसका जो वेस्ट मटेरियल है वो एज अ रॉ मटेरियल रेस्पायरेशन में यूज हो रहा है, और जो रेस्पायरेशन का वेस्ट मटेरियल है वो एज अ रॉ मटेरियल फोटोसिंथेसिस के लिए यूज हो रहा है। मीनिंग डे टाइम इन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर हो गया, डे टाइम इन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, यानी कि अपनी रिक्वायरमेंट खुद से दोनों पूरी कर रहे हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं नाइट टाइम की, अब अगर नाइट टाइम की तरफ हम आए तो नाइट टाइम में जो बेसिकली है वो फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही होती। क्यों नहीं हो रही होती? क्योंकि आप लोग जानते हैं रात को तो सूरज होता नहीं, तो इसलिए क्या होगा कि नाइट टाइम में इनके पास फोटोसिंथेसिस नहीं परफॉर्म हो रही। अब जब इनके अंदर फोटोसिंथेसिस परफॉर्म नहीं हो रही तो ये ऑक्सीजन जो है रेस्पायरेशन के लिए वो कहाँ से गेन करेंगे? ऑब्वियसली रेस्पायरेशन तो होगी क्योंकि उन्हें एनर्जी तो चाहिए, चाहे उनके पास फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही। तो इस केस में जो प्लांट हैं हमारे पास वो क्या करेंगे कि वो डायरेक्टली इन्वायरमेंट से ऑक्सीजन को इनटेक करेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर देंगे, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर देंगे और वो भी इन्वायरमेंट के अंदर। इसीलिए आप लोगों ने गौर किया होगा कि आप लोग अगर नाइट टाइम प्लांट के नीचे खड़े होते हैं ना तो सफोकेशन फील हो रही होती है। सफोकेशन इसलिए फील हो रही होती है क्योंकि वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहे होते हैं। लेकिन अगर हम मॉर्निंग टाइम जाए ना प्लांट्स के नीचे या ताज़ा हवा लें तो बेसिकली हमें फ्रेश फील हो रहा होता है। वो इसी की रीज़न है कि तब वो ऑक्सीजन रिलीज़ कर रहे होते हैं, लेकिन नाइट टाइम में वो ऑक्सीजन नहीं बल्कि कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ कर रहे होते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास कि जो बेसिकली हमारे पास हम अगर बात करें वुडी स्टेम्स की, वुडी स्टेम्स एंड रूट्स, वो रूट्स जो पुरानी हो गई हुई हैं। अब अगर हम लोग देखें, ध्यान करें कि जो हमारे पास वुडी स्टेम्स हैं या रूट्स हैं, यानी कि जब प्लांट को काफ़ी अरसा हो चुका होता है, लगे 3-4 साल 5-6 साल, यानी कि इतना अरसा गुजर जाता है, तो उसके ऊपर जो प्लांट की स्टेम है उसके ऊपर बाक आ जाती है। बाक कहते हैं छाल को, यानी कि वो जो लेयर्स हैं वो कवर, डेड सेल्स की लेयर जो है प्लांट को कवर करती जाती है। और इस तरह जो क्या होगा कि उनके अंदर वो डायरेक्टली एपिडर्मिस के थ्रू फिर वो गैसेस का एक्सचेंज नहीं कर सकते। तो इस केस में जो प्लांट हैं हमारे पास क्या करते हैं कि इस केस में इनके पास आप लोग अगर गौर करो या देखो कि बार के ऊपर छोटे छोटे से सुराख मौजूद होते हैं। अब वो जो छोटे छोटे से सुराख मौजूद होते हैं उनको हम नाम देते हैं लेंटिसेल्स का। अब ये जो बेसिकली लेंटिसेल्स हैं ये इनकी हेल्प कर रहे होते हैं कि गैसियस एक्सचेंज करवा सकें, ऑक्सीजन को इनटेक और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेल या फिर
मीनिंग गैशियस का जो है एक्सचेंज बेसिकली ये करवा सकते हैं। अब जब हम नेक्स्ट मूव करते हैं कि ये तो हमारे पास एपिडर्मस है, तो इन्होंने कर लिया, गैशियस का एक्सचेंज कर लिया, तो जो मीजोफिल सेल्स हैं वो कैसे कर रहे होते हैं? मीजोफिल सेल्स जो हैं हमारे पास, इनके अंदर एयर स्पेसिस मौजूद होती हैं, इन एयर स्पेसिस के थ्रू वो भी गैशियस एक्सचेंज कर सकते हैं। जो लास्ट वन हमारे पास बात आ जाती है कि जो हमारे पास बेसिकली यंग रूट्स हैं, कौन सी? यंग रूट्स हैं हमारे पास। अब ये जो हमारे पास यंग रूट्स हैं ये कैसे परफॉर्म कर रही होती हैं फिनोमेने को या फिर गैशियस एक्सचेंज को? ये थ्रू रूट्स, थ्रू डिफ्यूजन, यानी कि रूट्स के थ्रू। रूट्स ऑब्वियसली जड़ें जो है हमारे पास वो सॉइल के अंदर मौजूद होती हैं, तो जो सॉइल है बेसिकली उसके अंदर भी गैसेस मौजूद होती हैं। तो ये जो हमारे पास रूट्स हैं ये क्या करेंगी कि डिफ्यूजन के थ्रू अपनी जो गैशियस एक्सचेंज है उसको परफॉर्म कर लेंगे। डिफ्यूजन को आप लोग जानते होंगे, व्हाट इज डिफ्यूजन? डिफ्यूजन बेसिकली वो फिनोमिना है जिसमें कोई भी चीज़ हायर कंसंट्रेशन से टुवर्ड्स लोअर कंसंट्रेशन मूव करती है। तो इस इधर जो है हमारे पास यंग रूट्स हैं बेसिकली वो डिफ्यूजन के थ्रू अपना जो स्ट्रक्चर, अपना जो फंक्शन है वो परफॉर्म करवा लेते हैं। लास्ट वन जो हमारे पास आती है कि एक्वेटिक प्लांट्स। एक्वेटिक प्लांट्स जो हैं वो कैसे अपने फिनोमिने को, गैशियस एक्सचेंज को परफॉर्म करते हैं? एक्वेटिक, एक्वा मीनिंग वाटर, यानी कि वो प्लांट्स जो वाटर के अंदर रह रहे हैं, वाटर के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। जैसे कि हम कमल की बात कर लें, कमल का जो पौधा होता है वो पानी के अंदर रहता है, ऑब्वियसली गैशियस एक्सचेंज तो वो भी करेंगे। तो ये क्या करते हैं कि ये जो वाटर के अंदर भी हमारे पास गैसेस मौजूद होती हैं, तो ये वाटर के अंदर से क्या करेंगे? डिजॉल्व्ड जो गैसेस हैं उसको ले लेंगे और जो उन्होंने रिलीज करनी है वो इन द वाटर गैसेस को एक्सक्रीट कर देंगे या रिलीज कर देंगे।